पश्चिम बंगाल राज्य सरकारी कर्मचारी संघर्ष संयुक्त मंच की दुर्गापुर शाखा की पहल पर संगठन के सदस्य दुर्गापुर के सिटी सेंटर में बस स्टैंड के सामने एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे। सदस्यों ने कहा कि उनके सदस्य कई मांगों को लेकर शहीद मीनार में लंबे समय से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वे कर्मचारियों की शीघ्र भर्ती से लेकर सरकारी पदों में बढ़ोतरी तक की मांग को लेकर इन 319 दिनों से राज्य भर में आंदोलन कर रहे हैं, जिनमें लाखों पद खाली है। शुक्रवार को यह जवाबी भूख हड़ताल उस आंदोलन का समर्थन करने के लिए है। কালকে গতকাল মুখ্যমন্ত্রী বাজেটে 4% ডিএর কথাও বলেছে, তো কি বলবেন? দেখুন, আমাদের আন্দোলনটা শুধু ডিএর দাবি, মানে মুখ্যমন্ত্রী উচ্ছিষ্টের মতো 2% 4% ডিএ ছুড়ে দেবে এবং আমরা নিয়ে নেব, বিষয়টা এমনটা নয়। সারা ভারতবর্ষে এআইসিপিআই অনুযায়ী নির্দিষ্ট আদেশনামার মাধ্যমে বছরে 2 বার ডিএ দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গে কালকে যে রাজ্য বাজেট পেশ করা হয়েছে, সেই রাজ্যে যে 4% ডিএ ঘোষণা করেছে, এটা কোন সময়কার ক্ষতিপূরণ, অর্থাৎ অপরিকল্পিতভাবে কোনো কিছু দিয়ে দেওয়া নয়। আমরা চাইছি ডিএ স্থায়ী আদেশনামা এআইসিপিআই অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সেই ডিএ দেওয়া হোক। শুধু ডিএর জন্য এই আন্দোলন চলছে না, আমাদের 21 দিন ধরে অনশন চলছে, 79 দিন ধরে আমাদের 379 দিন ধরে আমাদের অবস্থান কর্মসূচি চলছে শহীদ মিনারে। বিষয়টা হলো, এই রাজ্যে প্রায় 9 লক্ষ সরকারি পদ আছে, যার মধ্যে 6 লক্ষ শূন্য পদ হয়ে পড়ে আছে। 6.5 লক্ষ প্রায় পশ্চিমবঙ্গে এত শূন্য পদ পড়ে আছে, সরকারি পদ। চাকরি কোথায়? যে কটা চাকরি হচ্ছে সেখানে স্বচ্ছতার অভাব। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী জেলে আছেন, আমাদের শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা রাস্তায় ধর্নায় 4% ডিএটা খুব একটা বড় ব্যাপার নয়। বড় ব্যাপারটা হচ্ছে যে এআইসিপিআই অনুসারে যে ডিএ দেবার যে ভারতবর্ষে সরকারি কর্মচারীদের যে সাধারণ আইন আছে, সার্ভিস রুল আছে, সেই অনুযায়ী একটা স্থায়ী আদেশনামা তাকে বার করতে হবে। এই স্থায়ী আদেশনামার মাধ্যমেই অন্য রাজ্যের সমস্ত কর্মচারীরা ডিএ পান। আমাদের রাজ্যে শুধু এই ডিএ নিয়ে একটা রাজনীতির চেষ্টা করা হয় যে আমি দিলাম, আমরা দিলাম, হেনা দিলাম, তেনা দিলাম। ডিএটা তো আমাদের বেতনের অংশ। ডিএটা অর্থাৎ একটা কন্ট্রাক্টে আমার যে ধরনের লাইফস্টাইল হওয়া কথা সরকার বিবেচনা করেছিলেন, যে চুক্তিতে আমি সই করে চাকরিটা পেয়েছি, সেই লাইফস্টাইলটা আমার বজায় রাখার দায়িত্ব সরকারের। এইটা সরকারই আপনার ভাঙছেন। এআইসিপিআই তো আমরা স্থির করি না, আমাদের এমপ্লয়াররা স্থির করেন, সরকার স্থির করেন, সেটাই দিতে পারছেন না এবং নানা রকমের ভাওতাবাজি বলছেন। আর এক প্রকল্পের টাকা আরেক প্রকল্পে তো কোনো লিগেলি দেওয়া যায় না। আপনি যে ফান্ড ডিসবার্স করছেন সেটা তো আপনি ওইভাবে দিতে পারবেন। আর এই যে আপনার প্রশ্নটা ছিল শেষটা, যে কোথায় কোথায় হচ্ছে, অর্থাৎ আপনি স্পষ্ট হয়তো দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে এটা একটা অদ্ভুত। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में रूपनारायणपुर नदी में नाव पलटने के बाद 5 लोग लापता हो गए हैं। इसमें एक बच्चा, एक किशोर और 2 वृद्ध व एक वृद्धा शामिल है। 4 हावड़ा के हैं और एक बागनान के मनकूर के रहने वाले हैं। इस घटना दासपुर थाने के दूधकोमरा और हावड़ा के बगनान थाने के चिटनन इलाके के बीच यह घटना दासपुर थाने के दूधकोमरा और हावड़ा के बगनान थाने के चिटनन इलाके के बीच रूपनारायण नदी में घटी। पुलिस ने बताया कि लापता लोगों में 7 वर्षीय ऋषभ पाल, 17 वर्षीय प्रताप मन्ना, अच्युत शाह, अमर घोष और उनकी पत्नी संगीता घोष शामिल है। जानकारी के अनुसार हावड़ा जिले के बेलगछिया, शिवपुर और बागनान से 19 लोगों का एक समूह पिकनिक के लिए पश्चिम मेदिनीपुर जिले के दासपुर के त्रिवेणी पार्क गया था। जब समूह बृहस्पतिवार की रात वापस लौट रहा था तो बीच नदी में उनकी नाव पलट गई। खबर के मुताबिक हावड़ा के बेलगछिया इलाके से कई लोग ब्लॉक नंबर 2 वेंसी इलाके में एक रिश्तेदार के घर आए थे। वहां से पश्चिम मेदिनीपुर के दासपुर में स्थित दूधकुमरा त्रिवेणी पार्क में पिकनिक मनाने 19 लोगों का एक समूह नाव से रवाना हुआ था। क्योंकि नदी के रास्ते जाने से समय कम लगता है, पिकनिक के बाद दोपहर में नाव से लौटने के दौरान ये हादसा हो गया। दरअसल रूपनारायण से हावड़ा की ओर जाने के दौरान बीच नदी में नाव में पानी घुसने लगा। पिकनिक ग्रुप में शामिल कुछ लोगों ने दावा किया कि नाव में पानी घुसने की चेतावनी के बावजूद नाविकों ने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया था। पुलिस ने बताया कि लोगों की चीखें सुनने के बाद अन्य लोग घटनास्थल पर पहुंचे और जितना संभव हो सका उतने लोगों को बचाया। घटना में 5 लोग लापता है, जिनके लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हावड़ा के जिलाधिकारी दीपप्रिया पी ने बताया कि दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद 2 आपदा प्रबंधन दलों और सिविल सुरक्षा कर्मियों को बचाव कार्य में लगाया गया।
বাঁচাও করছিলেন, ঠিক আছে, আমরা তো বুঝতে পারছি না কে বাঁচাও কী হচ্ছে ঘটনাটা। এবার পিকনিক স্পটে ঘটনাটা ঘটছিল, একটু পিকনিক স্পট থেকে একটু জলের মধ্যে থেকে, তা আমরা শুনতে পেয়ে সবাই মিলে ছুটে যাই। এদিকে এলাম, নৌকাকে প্রথমে দেখতে পেলাম, তারপরে আবার কিছুক্ষণ পরে নৌকাকে পাওয়া যায়। নৌকো পাওয়ার পরে আমরা আবার ছুটতে গিয়ে নৌকো 2-4 জন মিলে সহযোগিতা করে আবার নৌকো স্পটে আমি না গিয়ে অন্য আরও 4 জন। হাওড়া শিবপুরের কাছাকাছি একটা পরিবারের 17 জন তারা এসেছিল, নৌকায় করে পিকনিক করে বাড়ি ফেরার পথে মাঝ নদীতে নৌকা বিপত্তি হয়েছে। বাড়ির সদস্যরা বলছে 5 জন নিখোঁজ আছে। ঘটনাটা এই তো বললাম, মানে ঘুরতে পিকনিকে গেছিল বন্ধুদের সঙ্গে, আর এমনি নৌকা ডুবি হয়েছে। বাক্সি। বাক্সি কিনা সঠিক জানি না, বাক্সি শুনতে পাচ্ছি। আমার কাকার কাকি গেছে, আর ওনার বন্ধু বান্ধব গেছে। এইখান থেকে আমাদের এই পাড়ার থেকে 6 জন গেছে, আর অন্যান্য জায়গার থেকে আরো গেছে। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। बीजेपी सांसद दिलीप घोष शुक्रवार सुबह की फ्लाइट से दिल्ली रवाना होने के लिए कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर खड़े होकर अराबुल ने इस्लाम की गिरफ्तारी के बारे में कहा कि उनका झगड़ा नहीं है, यह काफ़ी उच्च स्तर पर चला गया है। जिसके पास अधिक राजनीतिक शक्ति होती है वह दूसरों को नियंत्रित करता है। आम जनता इनके अत्याचार से तंग आ चुकी है। इसका कोई समाधान नहीं है क्योंकि इसमें बड़े नेता शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि शाहजहां शेख मामले को हल्का बनाने के लिए किया गया है क्योंकि वहां सरकार उसे सुरक्षा दे रही है। আরাবুল ইসলামকে যে গ্রেফতার করা হলো সেটা কি পুলিশের সক্রিয়তা, যেটা পুলিশ এই রাজ্যে সক্রিয় নয় বলে বারবার আপনার অভিযোগ করেন, নাকি শওকত মোল্লা তার অঙ্গুলি হেলনে পুলিশ এই কাজটা করবে, এটা কোনটা? দেখুন, এদের ঝগড়া এই নতুন নয়, অনেক উপর স্তরে গেছে। যার রাজনৈতিক শক্তি বেশি থাকে সে অন্যকে দাবায় আর পুলিশকে দিয়ে। এদের এই অত্যাচার লড়াইতে সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ, আর এর কোনো সমাধানও নেই, কারণ রাজনৈতিক বড় নেতাদের হাত আছে। না, আমার যেটা মনে হচ্ছে তার চেয়েও বড় কথা, শাহজাহান শেখের যে কেস, তার থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘোরাবার জন্য, ওটাকে হালকা করাবার জন্য আর এটা করা হয়েছে। কারণ ওইখানে সরকারই তাকে প্রোটেকশন দিচ্ছে, পুলিশ তাকে প্রোটেকশন দিচ্ছে, দুনিয়ার লোক দেখছে, ওখানকার লোকরা দেখতে পাচ্ছে, কোথায় আছে জানে, কিন্তু পুলিশ জানতে পারছে না, কারণ তারা তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে। সেই জন্য আপনাদের দৃষ্টিটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য এই ধরনের ক্রিয়াকলাপ হচ্ছে। এক্ষেত্রে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্নটা উঠছে সেটা হচ্ছে, যদি পোস্ট পোল ভায়োলেন্সের জন্য আরাবুলকে গ্রেপ্তার হতে হয়, তাহলে বিজেপি এরকম 18 জন নেতার নাম দিয়েছিল যারা পোস্ট পোল ভায়োলেন্সে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। তাহলে কি কোথাও না কোথাও আপনাদের এটা আপনাদের কি আশাবাদী যে বাকি 17 জনও গ্রেপ্তার হবে? না, যদি পোস্ট পোল ভায়োলেন্সের উপরে এরা স্টেপ নিত রাজ্য সরকার, তাহলে এই নেতারা কেউ বাইরে থাকতো না। 18 জন, এরকম বহু কেস হয়েছে। আমরা কেস করতে পারিনি, আমাদের কেস নেয়নি বলে সিবিআই কেস করেছে, কিন্তু কারো গায়ে হাত দেওয়া হয়নি, কোনো এর উপরে কোনো ক্রিয়াকলাপ হয়নি। এ সবই টিএমসির নিজের রাজনৈতিক স্বার্থে, আর এই ধরনের কাজ করতে হয় তাকে হয়তো একটুখানি কড়কে দেওয়ার চেষ্টা আর সাধারণ মানুষের দৃষ্টি ফেরানোর চেষ্টা। সিবিআই আজকে বা আগামীকাল পোস্ট পোল ভায়োলেন্স আপনাদের দায়ের করা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে নদিয়ার হবিবপুর থেকে শুরু করে রানাঘাট একাধিক জায়গাতে খুব বড়সড় একটা অভিযান চালাতে পারে বলে ইঙ্গিত, কি বলবেন? আমি জানি না কি হতে পারে, কি হবে, এ তো প্রত্যেক দিনই আমরা রিমার্ক শুনি, কিন্তু এই ধরনের জঘন্য অপরাধ যারা করেছে, পশ্চিমবাংলার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার লুট করেছে, গণতন্ত্রকে যারা ক্ষতবিক্ষত করেছে, তাদের সাজা পাওয়ার দরকার আছে। কেন পায়নি এটা প্রশ্ন, তা না হলে আবার নির্বাচন আসছে, আবার হিংসা দেখতে হবে। আপনি দেব দল ছাড়তে চাইছেন, কখনো বলছেন আমি আর নেই, কখনো বলছেন বিদায় ঘাটাল। এটা দেবের ব্যক্তিগত ব্যাপার আর টিএমসির ব্যাপার, আমাদের কিছু বলার। কিন্তু অভিষেক আসরে নামলেন, উনি দেবকে ডাকছেন। গতবারেও ভোটের আগে উনি মোটামুটি জানিয়ে দিয়েছিলেন ভোট লড়বেন না, কিন্তু তাকে জোর করে লড়ানো হচ্ছিল, কারণ দেব আর দেবী ছাড়া টিএমসি জিততে পারবে না। দাদা, দেব কালকে বলছে যে আমি ভোটে নাও দাঁড়াতে পারি, তবে মুখ্যমন্ত্রী তিনি যা চাইবেন সেটা ওনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, ওনাদের পার্টির আমার কিছু বলার নেই। ধন্যবাদ। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। आज आसनसोल नगर निगम में नए आयुक्त के रूप में राजू मिश्रा ने अपना कार्यभार ग्रहण किया। विदाई आयुक्त आकांक्षा भास्कर ने उन्हें सभी जिम्मेदारियां सौंपी।
यहाँ आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, डिप्टी मेयर वसीमुल हक, एमएमआईसी इंद्राणी मिश्रा समेत आसनसोल नगर निगम के सभी लोग शामिल हुए। कार्यभार संभालने के दौरान नगर निगम के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। राजू मिश्रा ने कहा कि उन्होंने आज कार्यभार संभाला है और वे आसनसोल नगर निगम के मेयर समेत सभी पदाधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर नगर निगम के काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आसनसोल कॉर्पोरेशन আমাদের এখানে কোনো পার্মানেন্ট কমিশনারের পোস্ট ছিল না। আজকের এই সুন্দর অনুষ্ঠান কিন্তু দুঃখের অনুষ্ঠান। আমাদের প্রাক্তন কমিশনার খুব ভালোভাবে কর্পোরেশনটাকে ধরেছিলেন, তো হট করে ওনাকে সরে যেতে হচ্ছে। তবে যা হোক, আমরা ঘর থেকে অ্যাডভাইস পেয়ে এখানে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো, এটাই আমাদের পক্ষে খুব শুভকর একটা দৃষ্টান্ত হয়ে রইল। আমাদের মেয়র সাহেব রয়েছেন, আমাদের ডেপুটি মেয়র রয়েছেন, আমাদের সেক্রেটারি সাহেব রয়েছেন, আমাদের চিফ ইঞ্জিনিয়ার রয়েছেন, আমাদের অফিসের স্টাফরা সবাই রয়েছেন। যে আমাদের আসানসোল কর্পোরেশন আমাদের কলকাতার পরে কিন্তু দ্বিতীয় আয়তনে বড়, কিন্তু ওয়ার্ড ভিত্তিকে কলকাতার পরেই আমাদের আসানসোল কর্পোরেশন। এবং এখানে বহু বছর থেকে মানে একদম আমাদের কমিশনার ছিলেন না, তো এখন বর্তমানে একজন মানে কমিশনারকে আমাদের আসানসোলে कॉर्पोरेशन में एज कमिश्नर। तो जैसा आप लोगों ने देखा कि अभी मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, चेयरमैन साहब सब कोई थे, तो अभी मैंने चार्ज लिया है और जैसा उन्होंने बोला कि यही उम्मीद है कि अच्छे से सब मिलके काम करके आसनसोल को और अच्छे तरीके से हम जो जितनी भी पब्लिक सर्विसेज हैं, जितनी भी म्यूनिसिपल सर्विसेज सब दे पाएंगे। सर आज कोई औपचारिक मीटिंग होगा इस तरह का कुछ? वो तो अभी हमने चार्ज लिया है आपके सामने, तो इसके बाद जो प्रक्रिया है सब की जाएगी। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। उत्तर बंगाल के चाय श्रमिकों और चाय बागानों के मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा नहीं होने से नाराज भाजपा विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट किया। विधानसभा से शुभेंदु अधिकारी ने भी वॉकआउट किया। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार कहती रहती है कि वह चाय उद्योग और चाय श्रमिकों के विकास के लिए काम कर रही है, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। शुभेंदु अधिकारी पर सत्र के दौरान राज्य गीत को बाधित करने का आरोप लगाया है, जिसके खिलाफ शोभनदेव चट्टोपाध्याय और निर्मल घोष ने स्पीकर से शिकायत दर्ज कराई है। पश्चिम बंगाल की विधानसभा में एक बार फिर हंगामा हुआ और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी समेत अन्य विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। भाजपा नेताओं का कहना है कि चाय श्रमिकों को जमीन का पट्टा नहीं बल्कि जमीन का मालिकाना हक दिया जाना चाहिए। मुख्य विपक्षी दल एक स्थगन प्रस्ताव लेकर आया था। बीजेपी विधायक मनोज ओराव को प्रस्ताव पढ़ने की अनुमति दी गई, लेकिन स्पीकर विमान बैनर्जी ने इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी और तभी हंगामा शुरू हो गया। भाजपा विधायकों ने विधानसभा के अंदर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद वे बाहर चले गए। मनोज ओराव ने यह भी बताया कि प्रशासन चाय श्रमिकों के अधिकारी को पूरा करने में उचित भूमिका नहीं निभा रहा है, इसलिए वे आने वाले दिनों में भी अपनी मांग उठाएंगे। मुख्यमंत्री তোমায় জানা ধিক ধিক ধিক্কার, ধিক ধিক ধিক্কার। মুখ্যমন্ত্রী তোমায় জানা ধিক ধিক ধিক্কার, ধিক ধিক ধিক্কার। চা শ্রমিকরা অনাহারে মরছে কেন? রাজ্য সরকার জবাব দাও, জবাব দাও। মহিলা মুখ্যমন্ত্রী জবাব দাও, জবাব দাও। মুখ্যমন্ত্রী জবাব তোমায় দিতে হবে, মুখ্যমন্ত্রী জবাব তোমায় দিতে হবে। চা শ্রমিকদের জমির মালিকানা। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। पश्चिम बंगाल में भांगड़ में तृणमूल नेता अराबुल इस्लाम की गिरफ्तारी के बाद से भांगड़ में तनाव बना हुआ है। आपको बता दें कि एक आईएसएफ समर्थक की हत्या के आरोप में कोलकाता पुलिस ने तृणमूल के बाहुबली नेता अराबुल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया। अराबुल इस्लाम की गिरफ्तारी के अगले दिन ही पार्टी का झंडा फहराने को लेकर तृणमूल व आईएसएफ में आपस में भिड़ गए। आरोप है कि पुलिस ने गुस्साए कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया है। काफ़ी देर की मशक्कत के बाद हालात काबू में आए, लेकिन अभी भी हंगामा जारी है। इलाके में दहशत फैल गई है। भांगड़ में पार्टी का झंडा फहराए जाने के बाद हंगामा शुरू हो गया है। कुछ तृणमूल कार्यकर्ता इलाके में पार्टी के झंडे लहरा रहे थे। कथित तौर पर वहां पहले से ही आईएसएफ का झंडा लगा हुआ था।
तृणमूल कार्यकर्ताओं ने उस झंडे को फाड़ दिया। जब आईएसएफ ने उनका विरोध किया तो हंगामा शुरू हो गया। अराबुल की गिरफ्तारी के अगले दिन पोलरहाट हाई स्कूल के पास कूड़े के ढेर से एक ताज़ा बम भी बरामद किया गया था। कुल मिलाकर भांगड़ का माहौल एक बार फिर गर्मा गया है। तृणमूल ने जवाबी दावा किया है कि आईएसएफ का झंडा पहले ही उतार दिया गया था। उन्होंने झंडा फाड़ने से इनकार किया है। বোমা দেখতে পেল। কটা বোমা রয়েছে? বলছে তো দুটো তিনটে। হ্যাঁ, কখন কখন দেখতে পেলেন? ওই স্কুলের ছেলেপিলে যারা পরীক্ষার্থী তারা ওই পেশাব করতে গিয়েছিল, এমত অবস্থায় ওরা ওখানে দেখে ওখানে পুলিশকে খবর দেয়। খবর দেওয়া মাত্র আপনি তো সঙ্গে ছিলেন, কিভাবে গ্রেফতার করা হলো আরাবুল ইসলামকে? থানাতে ডাকা হয়েছিল। ডাকার পর 13 তারিখের মিটিং নিয়ে আমাদের বিশেষ আলোচনার জন্যই ডাকা হয়েছিল। আমরা আলোচনা করছিলাম, হঠাৎ করেই এসি সাহেব নাকি একজন এলেন। উনি বললেন যে আপনাকে লালবাজার যেতে হবে, আমাদের সিপি সাহেব আপনার সঙ্গে কথা বলবে। এটা বলেই নিয়ে গেল। তারপর পরবর্তীতে জানিয়েছে যে গ্রেপ্তার হয়েছে। আপনারা কি বসের ঘরেতে বসেই কথা? হ্যাঁ, আমরা কথা বলছিলাম, সেখান থেকেই লালবাজার নিয়ে গেছে। আরাবুল ইসলামের গ্রেপ্তারের পরে কি ভাঙড়ের রাজনীতিতে কোনো রকম পরিবর্তন বা কোনো ছাপ পড়তে পারে? না, দেখুন, একটা কথা হচ্ছে, সেইটা নিয়ে আমার কোনো মন্তব্য নেই। যেটা কথা হচ্ছে যে যেভাবে আইএসএফরা দোষ করলো, নওশাদ সিদ্দিকীর নেতৃত্বে ওখানে 7-7টা মার্ডার হলো। एबार ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। रानीगंज के आई हॉस्पिटल स्थित त्रिवेना हॉस्पिटल में गुरुवार की रात एक महिला मरीज की मौत से तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस घटना के बाद मरीज के परिवार ने इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए अस्पताल के अंदर ओपीडी सेक्शन का दरवाजा तोड़ दिया और डॉक्टरों के साथ काफी देर तक बहस हुई। बहरहाल आधी रात तक चली इस बहस के बाद पुलिस एवं रानीगंज बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा अंसारी पार्षद ज्योति सिंह के हस्तक्षेप से स्थिति सामान्य हो गई। पुलिस प्रशासन के पास किसी भी तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। मिली जानकारी के अनुसार रानीगंज के चूड़ीपट्टी धाड़वा इलाके की रहने वाली लक्की हाड़ी को इलाज के लिए रानीगंज आई हॉस्पिटल अंदर संचालित त्रिवेना अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुधवार सुबह 10 बजे के लगभग उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद शाम को उनके परिवार को अस्पताल की तरफ से बताया गया कि मरीज की मौत हो गई है। इस बारे में मरीज के रिश्तेदार अजय हाड़ी ने आरोप लगाया कि इलाज में लापरवाही की वजह से लक्की की मौत हुई है। उनका कहना है कि मृत महिला के 4 बच्चे हैं और वो उनके पति रोजगार करते थे तो किसी तरह से उनका घर चलता था। अब जबकि महिला की मौत हो गई है तो उन्होंने अस्पताल से मुआवजे की मांग की। वही जिस डॉक्टर के अधीन ये महिला अस्पताल में भर्ती हुई है, उस चिकित्सक पीके बजाज ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। ऑपरेशन टेबल पे लिया गया और उसके बाद जैसे उसको स्पाइनल हुआ, बेहोश किया गया, 10 मिनट के बाद उसका प्रेशर खूब फॉल कर गया। वो फॉल प्रेशर यूजुअली दवा देने से वो रिकवर कर जाता है। इस केस के अंदर जितना सारा मेडिसिन हम लोग दिए, कोई भी काम नहीं किया। 2 घंटे तक सब लोग उसके ऊपर काफ़ी मेहनत किया, लेकिन पेशेंट को सर्वाइव नहीं करवा पाए। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता था इसको, समझ गए। उसको हिस्टेक्टोमी के लिए भर्ती किया गया था। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर वासु आए थे और एनेस्थेटिस्ट में डॉक्टर पीएन मुखर्जी आए। तो ये है कि कहीं ना कहीं उसको कि स्पाइनल एनेस्थीसिया का रिएक्शंस कुछ हुआ होगा उसका, और कुछ भी नहीं, और तो कोई समझ में नहीं आया। पेशेंट फुल्ली इन्वेस्टिगेटेड था, उसका सब टेस्ट वेस्ट हो रखा था, तो कोई नहीं बोल सकता। कितना एज होगा? 35 जो ऐसा मॉडरेट कंडीशंस था, मरने वाला कंडीशंस नहीं था। में ये तो एनेस्थीसिया का कॉम्प्लिकेशंस है। অ্যানাস্থেসিয়ার যে পার্সেন্টেজ সেই ব্যাপারগুলো কিছু এখানে হয়েছে আপনাদের ডাক্তারি पीएन मुखर्जी। कौन क्या? पीएन मुखर्जी। तो क्या हुआ इस तरह का रिएक्शन ये एनेस्थीसिया के अंदर। मैंने आप क्या नाम? मेरा प्रदीप पीके बजाज। कुछ नहीं, सर्जरी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो इसके लिए आप करा सकते टेस्ट। मैंने आपका बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वाजिब बात है। वही घटना की खबर पाकर रानीगंज थाने की पुलिस, बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा अंसारी और 34 नंबर वार्ड के पार्षद ज्योति सिंह घटनास्थल पर पहुंच गए और स्थिति को शांत किया। उधर अस्पताल प्रबंधन ने मृतका के परिवार को मुआवजा देने की बात स्वीकार कर लिया है।
মেয়ে রয়েছে এখন, একটাও মেয়ে ছেলের ওর বিয়ে হয় নাই, স্বামী স্ত্রী দুজনা কাজ করতো, সংসার চলতো ওদের। এবার এই অবস্থায় হয়ে গেল, ওর ছেলেপুলের ভবিষ্যৎ কি হবে? অ্যাডমিশন হয়েছে, পেশেন্টের নাম কি এবং কি প্রবলেম নিয়ে এসেছে? কালকে অ্যাডমিশন হয়েছে, পেশেন্ট একদম হাঁটাফেরা করে সবকিছু ঠিক ছিল। কালকে কখন, কোন সময়? ওই কালকে তোমার হ্যাঁ। আচ্ছা, কি প্রবলেম ওনার কি ছিল যেখানে ডক্টর মারা এখানে প্রবলেম কি? একটা অপারেশনের এই ছিল ওর ছেলে, তো ওই কালকে 10টা-11টার সময় ভর্তি করলো। আর বিকালবেলায় আমরা যখন কাজেতে গেলাম, তো এই 7:30টার পর ফোন আসছে যে ডেট হয়েছে। একদম এটা আমরা বলবো তো হয়েছে কি এর জন্য, এটা আমাদের মেয়ে মারা গেছে। আর এটার জন্য নিশ্চয়ই। আমার নাম হলো অজয় হাড়ি। पेशेंट का क्या लक्की हाड़ी ठाकुर जी नाम क्या है पेशेंट का? हमार लक्की हाड़ी। अपना रानीगंज चूड़ीपट्टी धावड़ा। अपना नाम? अजय हाड़ी। एज क्या? 35-36 বছর। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। दुर्गापुर के एमएएमसी स्थित सिमुलतला काली मंदिर समीप आनंदलोक आश्रम में श्री श्री बाबाजी महाराज एवं श्री श्री माताजी का वार्षिक उत्सव के दौरान नेत्र जांच शिविर सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शिविर का सहयोग आनंदलोक आश्रम एवं नेताजी आई हॉस्पिटल के सहयोग से किया गया। शिविर में करीब 65 लोगों का नेत्र की जांच की गई। शिविर में करीब 65 लोगों की नेत्र की जांच की गई, जिसमें 20 लोगों को मोतियाबिंद का लक्षण पाया गया। आश्रम सचिव वासुदेव बैनर्जी ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। आज की प्रोग्राम করলেন? আজকে আমরা আই ক্যাম্প বসিয়েছি মুরাড্ডি আই নেতাজির আই সেন্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করে। ওদিকে অনেক পেশেন্ট এসেছিল, তারা চেক আপও করেছে এবং 20 জন মতন লোক আজকেই অপারেশনের জন্য যাবে, যাদের বিনামূল্যেতে সমস্ত কিছু চোখের অপারেশন করা হবে এবং চশমা পর্যন্ত তাদের দেওয়া হবে। কাদের পক্ষ থেকে? আমাদের পক্ষ মুরাড্ডি আনন্দলোক আশ্রমের পক্ষ থেকে তাদের ওখানে পাঠানো হচ্ছে আর কি। আর সন্ধ্যাবেলায় কিছু গরিব মানুষকে 40টা মেয়ে মানুষকে শাড়ি দেওয়া হবে এবং 20টি পুরুষ মানুষকে ফতোয়া দেওয়া হবে এবং কিছু মান্যগণ্য ব্যক্তিরা আসবেন, যেমন অনিন্দিতা মুখার্জি, বিশু পারিয়াল, লাভলি রায়, এনারা আসবেন, এসে সেই অনুষ্ঠানে যোগদান করবেন এবং সন্ধ্যাবেলা বাউল গানও আসর বসানো হচ্ছে এবং রাত্রিবেলা রটন্তী কালী পূজা যেমন পুজো হয় আমরা সেইভাবে পুজো সম্পন্ন করব। আপনার নাম? আমার নাম বাসুদেব ব্যানার্জি। আনন্দলোক আশ্রমের তরফ থেকে শিমুলতলা কালীবাড়ি আমি সেক্রেটারি पौधे अवस्थित है। वहीं शिविर के साथ साथ 200 लोगों में कंबल सहित वस्त्र वितरण किया गया। इस मौके पर अंशुमान दत्ता, जीसु प्रसाद, सुधीर वाद्याकर, चंडीचरण पाल, समीर देव, वीरेंद्रनाथ गायन उपस्थित थे। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। तमिलनाडु स्थित घर से लापता मानसिक रूप से पीड़ित गृहवधू को बांकुड़ा जीआरपी ने उसके परिवार को सौंपा। जीआरपी बांकुड़ा सूत्र के मुताबिक बरामद महिला तमिलनाडु की निवासी है। किसी तरह अपना मानसिक संतुलन खो बैठने के चलते ट्रेन से बांकुड़ा पहुंच गई। रेलवे पुलिस ने बताया कि उसे बांकुड़ा के वेदुआशोल स्टेशन के पास रेलवे ट्रक से बचाया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला की मानसिक बीमारी और भाषा संबंधी परेशानी के बावजूद रेलवे पुलिस ने सिर्फ एक फ़ोन नंबर से उसके परिवार का पता लगा लिया और महिला को परिवार को सौंप दिया। रेलवे पुलिस सूत्र के मुताबिक 6 फरवरी को बांकुड़ा के भेदुआशोल स्टेशन के पास स्थानीय लोगों ने एक महिला को रेलवे ट्रक के किनारे घूमते हुए देखा। खबर मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को बचाया। यह महसूस करते हुए कि महिला मानसिक रूप से बीमार है, उसे बांकुड़ा मिलेनियम मेडिकल कॉलेज में भर दिया। रेलवे पुलिस को बरामद कर महिला के पास से अंग्रेजी में लिखा कि आरती का नाम और एक फ़ोन नंबर मिला। रेलवे पुलिस को बरामद महिला के पास से अंग्रेजी में लिखा के आरती का नाम और एक फ़ोन नंबर मिला। जब उस फ़ोन नंबर पर संपर्क किया गया तो फ़ोन के दूसरी तरफ मौजूद शख्स ने खुद को आरती का पति बताया। फिर रेलवे पुलिस ने उसे बांकुड़ा बुलाया और आरती नाम की महिला को उसके हवाले कर दिया। रेलवे पुलिस की इस पहल से आरती और उनके पति खुश हैं। हिंदी तो पूछना तो ये हिंदी बोल जहां कौन लेने आए हैं आपको? अरे इंफॉर्मेशन சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன் சென்சார் வியூ
कहाँ से आ रहे हो? सेंसर व्यू हाँ, कहाँ से आ रहे हो आप? सेंसर व्यू हो गया। ஹஸ்பண்ட் தான் தரணும் டிராவல் பண்றதுக்கு तमिलनाडु लड़की मेरा नाम तमिलनाडु लड़की क्या नाम है आपका? नेम मेरा नाम आरती राजन वनली ভিডিওয়াসল আরসে ওকে উদ্ধার করা হয়েছে। হ্যাঁ কি হয় পারলো ভিডিওয়াসল আরস থেকে পারলো। আর কি কি আছে কি আছে স্যার? ওটা পাগল আছে, ওটা ইয়ে ছিল মেন্টাল ইয়ে कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिला आपको? इधर से बकुरा जीआरपी में हमको इन्फॉर्मेशन, मेरा वाइफ इधर ही है, हम चेन्नई से इधर आ गया, वापस मिलेगा सर। वाइफ का कोई दिक्कत है क्या? हाँ थोड़ा मेंटल प्रॉब्लम में मेरा वाइफ को ये ट्रेन में इधर ही आ गए, हम इधर से मेरा को इन्फॉर्मेशन आ गया ना, अभी इधर हम आएगा हॉस्पिटल में तो वापस निकल चलेगा। कितना दिन से मिसिंग था वो? फरवरी 4 संडे में मॉर्निंग सेंट्रल रेलवे स्टेशन में मिस होगा साहब मेरा वाइफ। उसके बाद क्या किए थे आप? उसके बाद क्या किए थे? पुलिस ने जाना खबर दिए थे? इन्फॉर्मेशन? हाँ पुलिस में इन्फॉर्मेशन करेगा साहब, कंप्लेंट नहीं दिया, हम इधर से सर्चिंग करेगा, इधर से इन्फॉर्मेशन आ गया ना, सडनली हम इधर ही आ गए, देखेगा हॉस्पिटल में देखेगा। लोकल थाना जो है वहाँ पर इन्फॉर्मेशन किए थे कि आपका वाइफ मिसिंग है? मेरा वहीं पर आगे सेंट्रल में इन्फॉर्मेशन करेगा, नहीं कंप्लेन करेगा। इन्फॉर्मेशन दिया था? नहीं दिया था इन्फॉर्मेशन ओनली दिया था, इधर ये जीआरपी में कॉल करेगा हमको। आपका जो रिलेटिव है वो लोग को जाना बंकुरा जंक्शन आरपीएफ में मेरे का कॉल करेगा। जब मिसिंग हुआ आपका वाइफ तो आपका रिलेटिव जो है वो। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। मुर्शिदाबाद के भरतपुर पुलिस स्टेशन इलाके के एक सोने की दुकान से करीब 60 लाख रुपए की सोने के आभूषण चोरी हो गए। रात में बदमाशों ने बेखौफ होकर सराफा दुकान में डकैती डाली। गुरुवार रात की ये घटना है भरतपुर थाने से सटे इलाके की। दुकान मालिक सवीना यास्मीन ने 60 लाख रुपए के आभूषण चोरी होने की शिकायत की है। बाद में भरतपुर थाने की पुलिस ने आकर जांच की, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सीसीटीवी फुटेज में रात में कई बदमाश असलहे व धारदार हथियार लेकर घूमते दिखे। उनके हाथों में लोहे की रॉड आदि भी थी। अपराधी कपड़े से चेहरे ढके हुए थे। सबसे पहले बदमाशों ने दुकान के पीछे की दीवार को काटने का प्रयास किया। प्रयास विफल होने पर दुकान के सामने का शटर तोड़कर चोरी की। यहां तक कि दुकान के पीछे चोरी का माल बांटा गया। इस दुस्साहसिक चोरी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। पहले की अशांति शांत होने के बाद भी पूर्वी बर्धमान जिले के एक शहर बर्धमान के गोदा इलाके में फिर से अशांति शुरू हो गई। मालूम हो कि बाइक दुर्घटना को लेकर 31 दिसंबर को बर्धमान के गोदा इलाके में अशांति हुई थी, लेकिन घायल व्यक्ति ने आज बर्धमान पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। घटना का तीर स्थानीय शेख आरिफ और शेख आसिफ की है। चाकू से घायल शेख फिरोज ने कहा कि जिसने मुझे चाकू मारा है उसका 2 महीने पहले उसके भाई के साथ बाइक से एक्सीडेंट हो गया था। इस समस्या को हल किया गया था। उसने बताया कि 31 दिसंबर की रात जब मैं बाइक लेकर जा रहा था तभी अचानक शेख आरिफ ने पीछे से चाकू मार दिया। যে আমাকে ছুরি মেরেছে তার ভাইয়ের সাথে আমার 2 মাস আগে বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল।
তো ওই ঝামেলাটা সবই ঠিক হয়ে গেছে। তারপরে ওর বাপ ওর নাকি বলেছিল যে আমার বড় ভাই আসছে, এসে তোকে মার্ডার করবে। ঠিক 31 তারিখ রাত্রে 8টার সময় আমি বাইক নিয়ে যাচ্ছিলাম, ওরা পিছনে ছিল, পিছন থেকে আমাকে ছুরি মেরে আমাকে আর একটা বন্ধুকে মারে। তারপর ওই ওর ভাইয়ের সাথে যে ঝামেলাটা হয়েছিল বাইক অ্যাক্সিডেন্ট নিয়ে, ওটা নিয়ে। এটা কোনো পার্টির কোনো ব্যাপার আছে? না পার্টির কোনো ব্যাপার নেই। তাহলে ওই ওর ভাইয়ের সাথে বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, ওটা নিয়ে। কি করো তুমি? আমি মার্বেলের কাজ করি। মার্বেলের কাজ করো, তো এরকম সামান্য বিষয় নিয়ে এরকম ছুরি মারামারি হয়ে গেল? কিছু তো নিশ্চয়ই ব্যাপার আছে। না ওই ব্যাপারই, বাইক অ্যাক্সিডেন্ট নিয়ে। ও আমাকে মেরেছিল, আমি ওর ভাইকে মেরেছিলাম, এটা নিয়ে। কতজনের নামে অভিযোগ করেছে? অভিযোগ করেছি এখন 2 জনের নামে। কি নাম তোমার? আমার ফিরোজ। যারা মেরেছে তাদের নাম? এক বড় ভাইয়ের নাম আরিফ, ছোট ভাইয়ের নাম আসিফ। ওরা এখন কোথায়? ওরা এখন কোথায়, যে বাড়িতে নেই কেউ, এখন কোথায় যায় না। কি এলাকায় নেই? না এলাকায় নেই। নিয়ে তারপর দিচ্ছিল আমাকে মাঠে মাঠে, আমি ছুটে দ্রুত ফেলে পালিয়ে গেছি। পালিয়ে আমি একটা গাড়ি তলায় লুকিয়েছিলাম, লুকিয়ে ঘরের বাইরের লোককে ফোন করেছিলাম, বাইরের লোকের সব হইচই করে হয়েছিল, আমি ঘরে চলে এসেছিলাম ছুটে। দিয়ে মানে কিসের জন্য এরকম কারণটা, ঘটনাটা কেন? ওই তো ওর লিয়েই, সে ওর ভাই আমি ওকে মেরেছিলাম বলে, তাই এটা নিয়েই। তোমরা মেরেছিলে কেন? হ্যাঁ তোমরা মেরেছিলে কেন? মারালি গেল হয়, ওরা সঙ্গে ঝামেলা হয়েছিল, তো ওইটা নিয়ে এখন আমরা আমরা 2 ভাই, তো এখন আমার একটা ওর একটা বার আমাকে দেখাচ্ছে। 2 ভাই। আমার নাম শেখ বাদল, শেখ তুফান। কি দিয়ে মেরেছিল? মানে ছুরি দিয়ে তাড়া করছিল, বল মারেনি। সন্ধ্যা 1টার সময় আমি বাইক নিয়ে যাচ্ছিলাম মাঠের ওখানে, তো বাইক নিয়ে যাচ্ছিলাম, বাইকটা রেখেছি আর ও লুকিয়েছিল। সেই দিনই কেরালা থেকে এসেছিল, লুকিয়েছিল। বাইকটা স্ট্যান্ড করেছি আর আমাকে পিছন দিকে ছুরি মেরেছে। আমার সাথে আরেকটা বন্ধু ছিল, মানে কালকে আমার সাথে আরেকটা বন্ধু ছিল, ওরও মেরেছে, ওরও হাতে লেগেছে, গলাতে লেগেছে। তারপরে আমি ওইখানে অজ্ঞান হয়ে যাই মাঠে। তারপরে আমার বাড়ি। ব্যুরো রিপোর্ট, PVTV নিউজ। लेके हाथों में निशान करते तेरा गुणगान खाटू आएंगे। लेके हाथों में निशान करते तेरा गुणगान खाटू आएंगे। खाटू आएंगे आएंगे खाटू आएंगे, खाटू आएंगे आएंगे खाटू आएंगे। लेके हाथों में निशान करते तेरा गुणगान खाटू आएंगे। ऋतु मन की बदलने लगी है, याद खाटू की आने लगी है। ऋतु मन की बदलने लगी है, याद खाटू की आने लगी है। सागर अंबर भूतल सारा, सागर अंबर भूतल सारा, बाबा गूंज रहा ये नारा, खाटू आएंगे। लगभग 9 वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात आखिर वो तिथि आ ही गई, जब श्री खाटू नरेश श्याम प्रभु का आगमन इस कोयलांचल की धरती रानीगंज में हो रही है। पूरा शहर एवं देश के लगभग तमाम श्री श्याम आराध्या देव के भक्तगण उस 22 फरवरी के इंतजार में लगे हैं, जब हरे का सहारा शीश के दाने विराजमान होंगे। 18 फरवरी से रानीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग 60 नेताजी सुभाष बोस रोड के किनारे भव्य श्री श्याम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसमें सिर्फ रानीगंज ही नहीं बल्कि पूरे देश के श्याम भक्त आकर बाबा के दर्शन करेंगे। इस संदर्भ में श्री श्याम बाल मंडल कमेटी के अध्यक्ष विष्णु सराफ ने बताया कि 18 तारीख को हम लोग की शोभा यात्रा स्टार्ट हो रही है, कलश यात्रा, जो गौशाला से निकल के सीधे यहाँ पर आएगी श्याम मंदिर। उसी जल से हम लोग की पूजा का पूरा अनुष्ठान संपन्न होगा। और 18 तारीख को शाम को 4 बजे से श्री सुंदरकांड का पाठ और श्याम जी के सालासर बालाजी का पूरा प्रोग्राम है। 19 तारीख को सुबह पूजा है और शाम को रानी की शादी के 1100 महिलाओं द्वारा मंगल पाठ का प्रोग्राम है। 20 तारीख को सुबह पूजा है। 20 तारीख को शाम को 700 पुरुषों महिलाओं द्वारा
अखंड ज्योति पाठ, शाम दिन अखंड ज्योति पाठ का प्रोग्राम है। 20-21 तारीख को हम लोग शायद श्री सीताराम जी मंदिर से नगर भ्रमण करेंगे, जिसमें भगवान की मूर्ति को लेकर सब मंदिर के सामने से हम लोग पूरे नगर भ्रमण करके आएंगे, श्याम मंदिर में हम लोग आएंगे। विष्णु जी ये बताएं कि ये जो आप आयोजन कर रहे हैं, इसमें हमने सुना है कि पूरे भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में लगभग सभी स्थानों से भक्तजन पधार रहे हैं। कितने लोगों के आने की उम्मीद है? देखिए, आशा तो जरूर है 5-10 हज़ार से ऊपर ही आएंगे, लेकिन अभी बोलना बहुत मुश्किल है कितने पहुँचेंगे। हर जगह से खबर आ रही है हम आ रहे हैं, हम लोग बोलना बहुत मुश्किल है। उन लोगों के लिए आपने क्या क्या व्यवस्था कर रहे हैं? वहाँ के जो भक्त हैं, जाहिर सा बात है जब इतने बड़े मंदिर आप निर्माण कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि पूरे वर्ष भर भक्तों का आगमन यहाँ पर होगी, तो उनके ठहरने का, उनके रहने के आप लोगों ने क्या सीताराम जी स्टेट है जिसके जितनी उनके अंडर में 3 धर्मशाला पूरी ली हुई है, BM संस में ली हुई है, कोर्ट असेंबली पूरी ली हुई है, RK के अंदर होटल बुक की हुई है, जो अपने GT रोड पर साहू जी की जो उनका है वो आप बोल रहे कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, हम 2 दिन के लिए दे देते हैं। इसी तरह जितना हम लोग से हो सकता है पूरी व्यवस्था हम लोग। विष्णु जी, हम देख रहे हैं कि आपने इस मंदिर का जो निर्माण किया है बहुत ही सोच समझ के NH के ऊपर किया है, जो NH-19 को भी कनेक्टेड कर दिया। यूँ हम देखें तो ये जो मंदिर आपने निर्माण किया है खड़गपुर बम्बे को जोड़ती है, तो एक और दिल्ली को भी, दिल्ली जैसे बनारस जैसी जगहों को जोड़ती है। यह कैसे आप लोग एक परिकल्पना में आई कि इस जगह में बाबा की कृपा है। हम लोग ज़मीन के लिए 10-10 जगह देखे, फाइनल भी कर लिए, ले भी लिए, जो बाबा को यहाँ विराजमान होता है अपने आप ही व्यवस्था करवाए। श्री श्राफ ने कहा कि इस मंदिर में सभी का स्वागत है और उन्होंने सभी लोगों से न सिर्फ उद्घाटन के दिन बल्कि पूरे साल मंदिर में आने का अनुरोध किया। ज्ञात रहे मंदिर के उद्घाटन के कार्यक्रम के दौरान भक्तों की उपस्थिति के लिए मंदिर के कमेटी के सदस्यों द्वारा प्रत्येक हिंदुओं के घर पर हल्दी लगा अक्षत एवं निमंत्रण कार्ड दिया जा रहा है। वही राष्ट्रीय राजमार्ग 60 के किनारे इस मंदिर के निर्माण पर मंदिर कमेटी के सचिव पवन केजरीवाल ने कहा कि पवन केजरीवाल जी, पवन जी बताइए ये विचार कैसे मन में आया कि आप लोग को श्याम मंदिर करना है? ये विचार हमारे मन में ऐसा है कि हमारे अंचल के अगल बगल सभी शहरों में नेमतपुर, दुर्गापुर, आसनसोल सभी शहरों में श्याम बाबा विराजित हो गए। तो हम लोगों के मन में ये बहुत ये हो रहा था कि रानी में भी विराजमान हूँ। हम लोगों ने इच्छा की तो बाबा अपने सजते गया, संवरते गया। हम लोग देख रहे हैं कि लगातार कई मास या कई वर्षों से आप लोग पूरा जी जान से जुटे हुए, जितने जो आपके संस्था के जितने सदस्य हैं तन मन धन से सभी पूरा समर्पित भाव से जुटे हुए हैं। कैसा प्रतीत हो रहा है? हम लोग को तो अभी आनंद की प्रतिभूति की कोई सीमा नहीं है। हम लोगों ने गत 5 सालों से इसमें किए हैं। बीच में कोरोना काल में 2 साल थोड़ा सा काम चलते रहा, कभी काम बंद नहीं हुआ। बाबा के मेहरबानी से काम कभी बंद नहीं हुआ, चाहे 2 मिस्त्री लगे हो। तो कोरोना काल के चलते थोड़ा लेट हुआ। अब बाबा का मंदिर बन के तैयार है। 18 फरवरी से 21 फरवरी तक हम लोग। पवन जी, आप लोग की जो संस्था है श्री श्याम बाल मंडल, कितनी पुरानी संस्था? ये हमारी संस्था 40 साल पुरानी है। कैसे आप लोगों ने इतना बड़ा बीड़ा उठाया, किस सोच के साथ आप लोगों ने बीड़ा उठाया? हमने जिस दिन बीड़ा उठाया था, हमारा पलक था कि एक मंदिर बनाना है। फिर कैसे बना ये हम लोग को भी परिकल्पना के मैंने सोच के बाहर है। बाबा अपने बनाते गए, दाता आते गए, हम लोग को प्रोत्साहन देते गए, वो बनते गए। किस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है? प्रशासनिक मदद? प्रशासन हमारे साथ पूरी तरह से है। हाँ, और सभाध्यक्ष 2 बार 3 बार आगे, MLA साहब भी आगे विराजमान है और विष्णु भगवान भी विराजमान है। श्री हनुमान प्रभु का गदा भी इसमें विराजमान है, शंख भी विराजमान है। तो ये सोच कैसे आई आपके मन में? क्या इसके पीछे का ये सोच मैंने थीम नहीं है, ये अब जनरली राजस्थान में सब दरवाजे ऐसे ही बनते हैं जी। हाँ, उसी हिसाब से राजस्थानी कला के हिसाब से बनाया गया। पूरा सिंह का परिवार है। हाँ, ये सिंह परिवार है। हाँ, और बता रहे हैं सिद्धि विनायक चलेगी। मुंबई वाले सिद्धि विनायक के जो कारीगरों ने निर्माण किया था, उन्होंने इसका भी किया। कितने कारीगर लगभग 100 कारीगर लगे।
देखो तारीख। आपने बताया कि कोरोना काल में भी आप लोग लगातार काम कोरोना काल में बाबा की ऐसी मेहरबानी थी कि हमारा काम बंद नहीं हुआ। 2-4 आदमी जरूर कम बेसी होते थे, काम चलते रहा। जिस दिन से मंदिर का निर्माण हुआ उस दिन से काम बंद हुआ। इतना बड़ा आपने हॉल बनाया, कितने लोगों का बैठने की व्यवस्था है? इसमें 700-800 आदमी बैठते हैं। और इसके अलावा चिल्की जी का आपने पवन केजरीवाल ने इस जगह की पार्किंग की समस्या को लेकर बताया कि इस समस्या से निपटने के लिए भी कमेटी द्वारा मंदिर परिसर के बेसमेंट में ही 35 गाड़ियां खड़ी रह सकती है, इसकी व्यवस्था की गई है। 35 गाड़ियों जबकि मंदिर के नीचे तल पर एक बड़े हॉल का निर्माण किया गया है, जिसमें भजन, संध्या एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि लगभग 3 बीघा जमीन पर लगभग 5000 वर्ग फीट पर यह मंदिर बनाई गई है। इसके साथ ही साथ भविष्य में महिलाओं एवं युवाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में भी मंदिर कमेटी द्वारा कई प्रकल्प करने की योजना है। श्री केजरीवाल ने बताया कि 5 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर मंदिर के आसपास के इलाके के मैदानों को भी पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ज्ञात हो कि श्री श्याम मंदिर परिसर में श्याम मंदिर के साथ साथ ही मंदिर परिसर से सटे त्रिशक्ति मंदिर का भी निर्माण किया जा रहा है, जबकि पूर्व से ही नाथ संप्रदाय की अति भव्य मंदिर अमृत कुंज आश्रम है। ऐसा कहा जा सकता है कि अब रानीगंज को कोयला नगरी के साथ देवनगरी के रूप में भी जाना जाएगा। लगभग 9 वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात आखिर वो तिथि आ ही गई, जब श्री खाटू नरेश श्याम प्रभु का आगमन इस कोयलांचल की धरती रानीगंज में हो रही है। पूरा शहर एवं देश के लगभग तमाम श्री श्याम आराध्य देव के भक्तगण उस 22 फरवरी के इंतजार में लगे हैं, जब हरे का सहारा शीश के दाने विराजमान होंगे। 18 फरवरी से रानीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग 60 नेताजी सुभाष बोस रोड के किनारे भव्य श्री श्याम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसमें सिर्फ रानीगंज ही नहीं बल्कि पूरे देश के श्याम भक्त आकर बाबा के दर्शन करेंगे। इस संदर्भ में श्री श्याम बाल मंडल कमेटी के अध्यक्ष विष्णु सराफ ने बताया कि 18 तारीख को हम लोग की शोभा यात्रा स्टार्ट हो रही है, कलश यात्रा, जो गौशाला से निकल के सीधे यहाँ पर आएगी श्याम मंदिर। उसी जल से हम लोग की पूजा का पूरा अनुष्ठान संपन्न होगा। और 18 तारीख को शाम को 4 बजे से श्री सुंदरकांड का पाठ और शाम जी की सालासर बालाजी का पूरा प्रोग्राम है। 19 तारीख को सुबह पूजा है और शाम को रामसी शादी के 1100 महिलाओं द्वारा मंगल पाठ का प्रोग्राम है। 20 तारीख को सुबह पूजा है। 20 तारीख को शाम को 700 पुरुषों महिलाओं द्वारा अखंड ज्योति पाठ, शाम जी का अखंड ज्योति पाठ का प्रोग्राम है। 21 तारीख को हम लोग शायद सीताराम जी मंदिर से नगर भ्रमण करेंगे, जिसमें भगवान की मूर्ति को लेकर सब मंदिर के सामने से हम लोग पूरे नगर भ्रमण करके रानीगंज श्याम मंदिर में हम लोग आएंगे। विष्णु जी ये बताएं कि ये जो आप आयोजन कर रहे हैं, इसमें हमने सुना है कि पूरे भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में लगभग सभी स्थानों से भक्तजन पधार रहे हैं। कितने लोगों के आने की उम्मीद है? देखिए, आशा तो जरूर है 5-10 हज़ार से ऊपर ही आएंगे, लेकिन अभी बोलना बहुत मुश्किल है कितने पहुँचेंगे। हर जगह से खबर आ रही है हम आ रहे हैं, हम लोग बोलना बहुत मुश्किल है। उन लोगों के लिए आपने क्या क्या व्यवस्था कर रहे हैं? वहाँ के जो भक्त हैं, जाहिर सा बात है जब इतने बड़े मंदिर आप निर्माण कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि पूरे वर्ष भर भक्तों का आगमन यहाँ पर होगी, तो उनके ठहरने का, उनके रहने के आप लोगों ने क्या सीताराम जी स्टेट है, जिसके जितनी उनके अंडर में 3 धर्मशाला पूरी ली हुई है, BM संस में ली हुई है, कोर्ट असेंबली पूरी ली हुई है, RK के अंदर होटल बुक की हुई है, जो अपने GT रोड पर साहू जी की जो उनका है वो आप बोल रहे कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, हम 2 दिन के लिए दे देते हैं। इसी तरह जितना हम लोग से हो सकता है पूरी व्यवस्था हम लोग। विष्णु जी, हम देख रहे हैं कि आपने इस मंदिर का जो निर्माण किया है बहुत ही सोच समझ के NH के ऊपर किया है, जो NH 19 को भी कनेक्टेड कर दिया। यूँ हम देखें तो ये जो मंदिर आपने निर्माण किया है खड़गपुर बम्बे को जोड़ती है, तो एक और दिल्ली को भी, दिल्ली जैसे बनारस जैसे जगहों को जोड़ती है। यह कैसे आप लोगों की परिकल्पना में आई कि इस जगह में? बाबा की कृपा है।
हम लोग ज़मीन के लिए 10-10 जगह देखे, फाइनल भी कर लिए, ले भी लिए। जो बाबा को यहाँ विराजमान होता है वो अपने आप ही व्यवस्था करवाए। श्री श्राफ ने कहा कि इस मंदिर में सभी का स्वागत है और उन्होंने सभी लोगों से न सिर्फ उद्घाटन के दिन बल्कि पूरे साल मंदिर में आने का अनुरोध किया। ज्ञात रहे मंदिर के उद्घाटन के कार्यक्रम के दौरान भक्तों की उपस्थिति के लिए मंदिर के कमेटी के सदस्यों द्वारा प्रत्येक हिंदुओं के घर पर हल्दी लगा अक्षत एवं निमंत्रण कार्ड दिया जा रहा है। वही राष्ट्रीय राजमार्ग 60 के किनारे इस मंदिर के निर्माण पर मंदिर कमेटी के सचिव पवन केजरीवाल ने कहा कि पवन केजरीवाल जी, पवन जी बताइए ये विचार कैसे मन में आया कि आप लोग को श्याम मंदिर करना है? ये विचार हमारे मन में ऐसा है कि हमारे अंचल के अगल बगल सभी शहरों में नेमतपुर, दुर्गापुर, आसनसोल सभी शहरों में श्याम बाबा विराजित हो गए। तो हम लोगों के मन में ये बहुत ये हो रहा था कि रानीगंज में भी विराजमान हो। हम लोगों ने इच्छा की तो बाबा अपने सजते गया, संवरते गया। हम लोग देख रहे हैं कि लगातार कई मास या कई वर्षों से आप लोग पूरा जी जान से जुटे हुए, जितने जो आपके संस्था के जितने सदस्य हैं तन मन धन से सभी पूरा समर्पित भाव से जुटे हुए हैं। कैसा प्रतीत हो रहा है? हम लोग को तो अभी आनंद की प्रतिभूति की कोई सीमा नहीं है। हम लोगों ने गत 5 सालों से इसमें की है। बीच में कोरोना काल में 2 साल काम थोड़ा सा काम चलते रहा, कभी काम बंद नहीं हुआ। बाबा के मेहरबानी से काम कभी बंद नहीं हुआ, चाहे 2 मिस्त्री लगे हो। तो कोरोना काल के चलते थोड़ा लेट हुआ। अब बाबा का मंदिर बन के तैयार है। 18 फरवरी से 21 फरवरी तक हम लोग। पवन जी, आप लोग की जो संस्था है श्री श्याम बाल मंडल, कितनी पुरानी संस्था? ये हमारी संस्था 40 साल पुरानी है। कैसे आप लोगों ने इतना बड़ा बीड़ा उठाया, किस सोच के साथ आप लोगों ने बीड़ा उठाया? हमने जिस दिन बीड़ा उठाया था, हमारा पलक था कि एक मंदिर बनाना है। फिर कैसे बना ये हम लोग को भी परिक्रमा के सोच के बाहर है। बाबा अपने बनाते गए, दाता आते गए, हम लोग को प्रोत्साहन देते गए, वो बनते गए। किस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है? प्रशासनिक मदद? प्रशासन हमारे साथ पूरी तरह से है। हाँ, और सभाध्यक्ष 2 बार 3 बार आ गए, MLA साहब भी आ गए। विराजमान है और विष्णु भगवान भी विराजमान है। श्री हनुमान प्रभु का गदा भी इसमें विराजमान है, शंख भी विराजमान है। तो ये सोच कैसे आई आपके मन में? क्या इसके पीछे का ये सोच माने थीम नहीं है। ये अब जनरली राजस्थान में सब दरवाजे ऐसे ही बनते हैं जी। हाँ, उसी हिसाब से राजस्थानी कला के हिसाब से बनाया गया। पूरा शिव जी का परिवार है। हाँ, ये शिव परिवार है। हाँ, और बता रहे हैं सिद्धि विनायक चलेगी। मुंबई वाले सिद्धि विनायक के जो कारीगरों ने निर्माण किया था, उन्होंने इसका भी किया। कितने कारीगर लगभग 100 कारीगर लगे। और आपने बताया कि कोरोना काल में भी आप लोग लगातार कोरोना काल में बाबा की ऐसी मेहरबानी थी कि हमारा काम बंद नहीं हुआ। 2-4 आदमी जरूर कम बेसी होते काम चलते रहा। जिस दिन से मंदिर का निर्माण हुआ उसमें से काम बंद हुआ। इतना बड़ा आपने हॉल बनाया, कितने लोगों का बैठने की व्यवस्था है? इसमें 700-800 आदमी बैठते हैं। और इसके अलावा खिड़की में किस चीज़ का पवन केजरीवाल ने इस जगह की पार्किंग की समस्या को लेकर बताया कि इस समस्या से निपटने के लिए भी कमेटी द्वारा मंदिर परिसर के बेसमेंट में ही 35 गाड़ियां खड़ी रह सकती है, इसकी व्यवस्था की गई है। 35 गाड़ियों जबकि मंदिर के नीचे तल पर एक बड़े हॉल का निर्माण किया गया है, जिसमें भजन, संध्या एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि लगभग 3 बीघा जमीन पर लगभग 5000 वर्ग फीट पर यह मंदिर बनाई गई है। इसके साथ ही साथ भविष्य में महिलाओं एवं युवाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में भी मंदिर कमेटी द्वारा कई प्रकल्प करने की योजना है। श्री केजरीवाल ने बताया कि 5 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर मंदिर के आसपास के इलाके के मैदानों को भी पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ज्ञात हो कि श्री श्याम मंदिर परिसर में श्याम मंदिर के साथ साथ ही मंदिर परिसर से सटे त्रिशक्ति मंदिर का भी निर्माण किया जा रहा है, जबकि पूर्व से ही नाथ संप्रदाय की अति भव्य मंदिर अमृत कुंज आश्रम है। ऐसा कहा जा सकता है कि अब रानीगंज को कोयला नगरी के साथ देवनगरी के रूप में भी जाना जाएगा। रानीगंज के गिरजापाड़ा स्थित HP इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज में बाउंड्री वॉल और गेट का उद्घाटन रानीगंज के विधायक तापस बैनर्जी द्वारा किया गया।
आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण द्वारा इस बाउंड्री वॉल और गेट का निर्माण कराया गया है। आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण की तरफ से 7 लाख से भी ज्यादा की लागत से इस बाउंड्री वॉल और गेट का निर्माण कराया गया। इस मौके पर यहां रानीगंज विधायक तथा आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन तापस बनर्जी के अलावा रानीगंज बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा, माइनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल अनुपम रॉय सहित कॉलेज के तमाम शिक्षक और अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। इस मौके पर कॉलेज के तरफ से विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा फीता काटकर और नारियल फोड़कर बाउंड्री वॉल और गेट का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर तापस बनर्जी ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शासनकाल में पूरे पश्चिम बंगाल के साथ साथ रानीगंज में भी हर तरह की शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक काम हुआ है और इस कॉलेज में बाउंड्री वॉल और गेट का निर्माण इसका प्रमाण है। साथ ही मौजूद हमारे संवाददाता ने खबर की विस्तृत जानकारी ली। এখন এই মুহূর্তে আমরা এসে পৌঁছেছি ঐতিহাসিক শহর এবং খনি শহর রানীগঞ্জে এবং উপস্থিত রয়েছি মেদিনীপুর রোড রাষ্ট্রীয় রাজমার্গ 60-এর ঠিক গির্জাপাড়া এলাকায়। আজকে সরাসরি আপনাদেরকে জানাবো আমাদের পিবিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে ইনস্টিটিউট অফ মাইনিং কলেজ 1905 সালে এই সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বহু মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার এই কলেজ থেকে পাস আউট হয়ে বেরিয়েছেন এবং বিভিন্ন জায়গায় কর্মরত রয়েছেন। আজকে 1905 সালে কলেজ ঐতিহাসিক কলেজ ইনস্টিটিউট অফ মাইনিং প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর 1995 সালে এইচবি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি অ্যান্ড মাইনিং এই নামটি অ্যাফিলিয়েটেড হয় এবং তারপরে আজকে যে ব্যাপারটি ছিল সেই ব্যাপারটা হচ্ছে আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পরিষদের যে তহবিল সেই তহবিল থেকে প্রায় 7,35,153 সামথিং অ্যামাউন্ট দিয়ে এই অ্যামাউন্টটি দিয়ে তহবিল থেকে বাউন্ডারি ওয়াল এবং আপনারা দেখছেন সরাসরি আমাদের পিবিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে আমি আমার প্রতিনিধিকে দেখাতে বলবো সেই দৃশ্যটি যেখানে এই গেটটিকে ইনোগ্রেশন পার্ট এই মধ্যে এতক্ষণে সম্পন্ন হলো। উপস্থিত ছিলেন আড্ডার চেয়ারম্যান এবং রানীগঞ্জের বিধায়ক তাপস ব্যানার্জি মহাশয় এবং সাথে ছিলেন বড় টু এর চেয়ারপারসন মুজম্মিল শাহজাদা আনসারি মহাশয়। ওনাদেরকে ইনোগ্রেশন ওনাদেরকে সম্মানিত করার পর রবীন্দ্রনাথ ট্যাগরের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদানের পর শুভ কাজটি শুরু হলো এবং সমাপ্ত হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যেই। এই গেটের ফিতা কেটে এই গেটটির শুভারম্ভ করলেন আসানসোল এবং আসানসোল দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্টের চেয়ারম্যান এবং রানীগঞ্জের বিধায়ক তাপস ব্যানার্জি মহাশয়। আসুন দেখে নিই প্রিন্সিপাল এই ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি অ্যান্ড মাইনিং কলেজের প্রিন্সিপাল অনুপম রায় মহাশয় এবং রানীগঞ্জের বিধায়ক তাপস ব্যানার্জি মহাশয় আমাদেরকে কি মূল্যবান রাখছেন আমাদের কাছে। इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग कॉलेज के जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा हमारे माननीय एमएल तापस बनर्जी जो रानीगंज के एमएलए हैं তহবিল থেকে প্রায় 7 লক্ষ টাকা তহবিল থেকে হয়ে আজকে কলেজের আপনি গেট করলেন নতুন গেট। গেটটা তার আগে বাউন্ডারি ওয়ালটা বলে হয়েছিল, 7 লাখ টাকা করে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের গেটটা খুব বাজে অবস্থায় আছে, তো গেটটাও করে দেওয়া হলো। টাকাওয়ালা দেখুন বিখ্যাত কলেজ, 125 বছর হতে চললো আর 5 বছর পর পশ্চিমবাংলার মধ্যে সব থেকে আমার মনে হয় পুরোনো মাইনিং কলেজ পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্ট ওয়েস্ট বেঙ্গলের ইয়েতে চলে আর কি, তার যে আন্ডারে আছে। সভাপতি আমরা আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন সংস্থায় গেটটা করে দিলাম, বাউন্ডারিটা করে দিয়েছি। আগামী দিন ওরা বলেছে একটা হাই মাস লাইট একটা ক্লোসাইন বোর্ড, সেটাও প্রসেসে আছে, মাঝখানের মধ্যে সেই কাজগুলো হয়ে যাবে। দুর্গাপুর উন্নয়ন পরিষদের যে তহবিল থেকে যে আজকে বাউন্ডারি ওয়াল এবং গেটের ইনোগ্রেশন হলো, এই ব্যাপারটা নিয়ে কী জানাবেন এবং এই কলেজের ঐতিহাসিক কলেজ সুপ্রসিদ্ধ কলেজ নিয়ে কী জানাবেন? এই ব্যাপারে আমি যেটা সর্বপ্রথম আমাদের কলেজের ছাত্র শিক্ষক এবং সমস্ত স্টাফের তরফ থেকে আমি এডিডিএর চেয়ারম্যান সাহেব মাননীয় তাপস ব্যানার্জি মহাশয়কে আমি আমার সম্মান জানাবো, আমার ধন্যবাদ জানাবো কলেজের পক্ষ থেকে। এবং আমি অনেক দিন আগে যখন আমি ভার গ্রহণ করেছিলাম এই কলেজে, তখন থেকে আমার ইচ্ছা ছিল, প্রথম ইচ্ছা ছিল আমার এই কলেজের যে গেটটা, সেই গেটটা যেভাবে হোক যদি আমরা আমাদের চেয়ারম্যান সাহেবকে বলি, স্যার নিশ্চয়ই না করবেন। এবং অদ্ভুতভাবে আমি দেখলাম প্রথমবার বলাতেই স্যার কিন্তু আমাকে ফিরিয়ে দেননি। এবং रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। मारवाड़ी युवा मंच जामुड़िया शाखा की ओर से जामुड़िया बालिका विद्यालय के समीप मारवाड़ी युवा मंच के प्रांगण में प्रथम बार 6 दिवसीय नेचुरल थेरेपी कैंप का आयोजन किया गया।
ये कैंप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आरोग्य जीवन संस्थान हनुमानगढ़ राजस्थान के द्वारा लगाए हैं। कैंप में कमर दर्द, घुटना दर्द, सर्वाइकल दर्द, जोड़ों का दर्द, हाथ एवं पैरों का शून्य रहना, शुगर साइटी का दर्द, थायराइड, पुराना सर दर्द, लकवा, गैस, कब्ज एवं मोटापा का इलाज इस नेचुरल थेरेपी के द्वारा किया जाता है, जिनका लाभ आज कई लोगों ने लिया है। इसके बारे में जानकारी देते हुए इलाज करने आए संजय कुमार दुकानिया ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कहीं। चाहे बिल्कुल नेचुरल है। मैं 15 मिनट कराया हूँ, अभी संग के संग मेरे को रिलीफ महसूस हो रहा है। मैं सबको एडवाइस करूँगा, हर आदमी को इसको कराना चाहिए। अच्छा, कोई नो साइड इफेक्ट इसमें, कोई दवाई का दरकार नहीं है। और पुराना यही चीज़ है जिसको हम लोग आज तक भूल चुके हैं। इसको यदि रेगुलर रखेंगे तो किसी भी आदमी का मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें पैर का एक प्रेशर करते हैं और वाइब्रेशन मशीन द्वारा करते हैं, और जिसका जैसा प्रॉब्लम हो उस हिसाब से उंगली में मेथी का दाना बांध के ट्रीटमेंट किया जाता है। आप बहुत ही आराम लग रहा है, बहुत ही आराम लग रहा है। आपका परिचय? मेरा नाम सज्जन कुमार डोकानिया, मावड़िया मंच द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें मैं पहला पेशेंट हूँ। वही इस मौके पर अध्यक्ष मनीष अग्रवाल एवं नंदन अग्रवाल उपस्थित थे। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।